Namaskaram students and good morning all. So in last lecture we had initiated our discussion on exceptions to section 45 subsection 1. So before learning exception to section 45 subsection 1, let's revise quickly what we had already discussed in the last lecture. So capital gain is computed in when the following conditions are satisfied. There has to be a capital asset. The capital asset must get transferred. And if capital asset is transferred in the previous year, then your year of tax is equal to year of transfer. And this is very important phrase. Whenever transfer takes place, you are supposed to pay the tax. So taxation is very clear. Okay. Now, there are certain situations where capital gain cannot be taxed or should not be taxed logically in the year of transfer, because assessee may or may not realize the money in the year of transfer. And these are the very genuine cases, okay, and it's beyond control of the assessee. So those cases are known as CCDS, okay. And whenever CCDS comes in exam, you have to be little more concerned, little more careful, because there's a good chance that you may make mistake, okay. So those four exceptional situations are conversion of capital asset into stock in trade, compulsory acquisition of capital asset by the government, destruction of capital asset by NRFE, natural rights, riot, fire explosion, enemy attack. So that is NRFE. Specified agreement, this is joint development agreement in case of real estate development project. So these are the four specified transactions. So let's start with the first one. Let's start with the first one, section 45 subsection 1, capital transfer of capital asset. Transfer of capital asset. Sir, whenever you transfer capital asset in ordinary circumstances, this is the 90% chances. 90% practically that we do, okay, the work that we do in our offices belongs to section 45 subsection 1, 90%. So if you are good in section 45 subsection 1, 90% of the practical aspect of the capital gain is already taken care of. The other situation which we are going to learn here are called special circumstances of capital gain chapter. Those special circumstances may exist only in exceptional cases. It's not a regular. The regular one is first one. तो पहले तो regular one का capital gain compute करते हैं through note 1. So let's go and understand how do we compute capital gain in regular cases, ordinary cases. This is not exceptional case. It's a regular case. Okay. Mr. RP acquired a house property situated in Mumbai for rupees 10 lakh as on 30th June 2001. Further, he has incurred 20 lakh rupees as cost of improvement. So this is COA. The second one is COI. COA happened in 0102. तो indexation आपको इसका लेना है 100 rupees. Cost of improvement has happened in November 2013. So COI happened in November 2013. That means 1314 और 1314 का COI है 220. तो ये 220 भी ले लिया. Finally, he sold his house for rupees 250 lakh as on 31st March 2021. तो current year में after paying brokerage at the rate of 2%, Mr. RP purchased another house property in Trivandrum for rupees 120 lakh. So I was shifting from Mumbai to Trivandrum. तो मुंबई का घर बेच दिया और ट्रिवेंड्रम में एक नया घर ले लिया है. So whenever you sell a property and if you repurchase the property, capital gain appreciate this kind of investment, and capital gain gives you exemption under section 54. कैपिटल गेन क्या कर लेता है 54 में आपको एग्जम्पशन दे देता है. तो क्योंकि 54 में आपको एग्जम्पशन मिलता है, यू मस्ट नो 54 में क्योंकि आपको एग्जम्पशन मिलता है, तो ये टैक्स प्लानिंग है. इट इज नोन एज द टैक्स प्लानिंग. तो घर बेचने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा गेन हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एक नया घर खरीदना चाहिए. दिस इज द वेरी बेसिक कंसल्टेंसी दैट इवन अ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, even an ordinary tax consultant, they give to their client. Okay, if you have sold a house property, repurchase a house property for saving your money, ठीक है ना, saving your tax. तो assessee is the RP,
legal status individual, residential status OR, AY 21-22, PY 20-21, PAN dash. Computation of long-term capital gain. Sir, why long-term capital gain? Because period of holding of house property is more than 24 month. हाउस प्रॉपर्टी है तो 24 मंथ में लॉन्ग टर्म हो जाता है. 2001 to 2021 21 साल होते तो ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. तो हाउ डू वी कंप्यूट देन? सर वेरी सिंपल. Full value of consideration 250 lakh minus transfer expenses 2%. So 2% of 250 lakh is 5 lakh rupees. So net consideration is 245 lakh. 245 lakh में से दो कॉस्ट में माइनस करने, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. हाउ डू वी डिटरमाइन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? Index cost of acquisition is equal to cost of acquisition into CI of transfer year divided by CI of acquisition year. तो CI of transfer year कितना है? 301. ट्रांसफर ईयर कितना है सर? 301. ये आपको बाय हार्ट करना आता है. ये 2021 का है. एक्विजिशन ईयर हुआ 0102, तो उसका तो 100 है. तो सर ये 30.1 लाख हो गया. ये इसको हम दे देंगे. COI index cost of acquisition is equal to cost of index cost of improvement is equal to cost of improvement multiply by CI of transfer year. ये ट्रांसफर ही होता है यहाँ पे हमेशा. Divide by CI of improvement year. So 20 लाख multiply by 301 divide by 220, ये 20.36 लाख करके आया. राउंडिंग ऑफ किया क्योंकि रुपीज इन लाख से रखना था. तो 30 माइनस कर दिया यहां से, 27 भी माइनस किया तो 187.54 करके एक आंसर आ रहा है. 187.54. हाँ, शिव का आंसर 187.53. वो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वही हो जाएगा. राइट आंसर है शिव, वेरी गुड. अब इतने बड़े कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स भरना चाहिए क्या? 187 लाख. मुझे बताओ, ऑर्डिनरी एसेट से इतने बड़ी अमाउंट पे टैक्स भरना चाहेगा क्या? विल यू पे? अगर ये आपका सिचुएशन होता तो आप पे करते क्या? 1 करोड़ 87 लाख का 20% ह्यूज कैपिटल गेन होता है. विल यू पे इतना टैक्स? नहीं. तो उनको टैक्स प्लानिंग क्या सिखाना फिर? सो व्हाट इज द टैक्स प्लानिंग? सर टैक्स प्लानिंग एकदम सिंपल. Sir, if you have sold house property, definitely you are an individual, you will need another house property to stay. So instead of renting out the property, you please purchase a property. जितनी भी प्राइस के लिए आप नई प्रॉपर्टी परचेस करोगे, आपको उतना कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा. तो 120 लाख का एग्जम्पशन मिला, तो ही इज लेफ्ट विद 67 लाख. और इसको टैक्स होता है अंडर सेक्शन 112 एट द रेट ऑफ 20%. तो इसको और कम करना था तो इसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए था. 120 का 140, 150, 160, जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही कैपिटल गेन कम होते जाता है. बोलो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 बेसिक एकदम बताया मैंने आप लोगों को. उसके अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही, ठीक है ना, इसका एग्जांपल दे दिया था कि डिस्ट्रक्शन को क्यों टैक्स किया. याद आ रहा है ना आप लोगों को? किसी का घर डिस्ट्रॉयड हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, गवर्नमेंट क्यों टैक्स कर रहा है? इसका लॉजिक तो मैंने बताया था आप लोगों को कि फैक्ट्री में खुद आग लगा देते थे और बोलते थे कि ये तो डिस्ट्रक्शन हो गया, अब टैक्स कैसे लगेगा. लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिलता था इनको, अच्छा खासा इंश्योरेंस क्लेम मिलता था. तो सेल करने से अच्छा तो जला दो ना. सेल करेंगे तो टैक्स लगेगा, जला देंगे तो टैक्स नहीं लगेगा. उसके अलावा बहुत सारी लाइबिलिटी जो सर पे रहती है वो निकल जाती है. तो गवर्नमेंट ने उस टैक्स के इवेजन को नलीफाई करने के लिए ये इंश्योरेंस क्लेम को टैक्स किया. इनफैक्ट मैं आपको एक केस लॉ का रेफरेंस भी दे सकता हूं, यहाँ पे आपके बुक में है, देखो. आज पर सुप्रीम कोर्ट, इन केस वानिया सिल्क मिल प्राइवेट लिमिटेड, any compensation received as an insurance claim for loss of capital asset not to be taxable. ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि यार बेचारी की फैक्ट्री जल गई है और उसमें तुम टैक्स कर रहे हो उसको. लेकिन 2001 में लॉ अमेंड किया गया, एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया, sorry, which nullifies the impact of the above case law. अभी इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन आपको अगर मिला तो इट विल बी टैक्सेबल. लेकिन कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा सर? इन द ईयर ऑफ, टैक्सेबल का ईयर चेंज हो जाता है. टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन जिस साल मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा. तो ये एक्सेप्शनल हो गया ना. अरे एक्सेप्शनल हो गया ना. यूजुअली ईयर ऑफ ट्रांसफर में टैक्स होता है. तुम्हारा
तुम्हारा जो घर है 1920 में डिस्ट्रॉयड हो चुका है, तुमको क्लेम मिल रहा है 2122 में, तो 2122 में टैक्स होगा, तो इसके अगेंस्ट जा रहा है, राइट? अरे समझ रहे हैं आपको, नॉर्मल के अगेंस्ट है ना, एक्सेप्शनल है ना ये। हाँ, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट बाय नरफे, नेचुरल कैलामिटी, राइट्स, फायर, एक्सप्लोजन, एनिमी अटैक एंड कॉम्बैटिंग ऑफ एनिमी। एनिमी अटैक मतलब इंडिया पाकिस्तान अगर वॉर हो जाता है तो उनका अटैक, कॉम्बैटिंग मतलब इंडिया जब रिवर्स काउंटर अटैक करता है तो उसमें भी प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये सब बातें उसमें लिखी गई है। फटाक से एक मेरा एक बेसिक इलस्ट्रेशन है नोट नंबर 2 में, वो पढ़ लेते हैं। Mr. Tom had lost his property during 1920 in Kerala flood. और मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लैंडस्लाइड होता है केरला में, ठीक है। This property was insured and insurance company gave him compensation in the financial year 2021 rupees 100 lakh. Mr. Tom had purchased this property in the year 2005-6 for 12 lakh rupees and had incurred development expenditure. तो ये cost of improvement है, ये cost of acquisition है, ये full value of consideration है, 8 lakh in 13-14. कंप्यूट द कैपिटल गेन। मैं चाहता हूं कि आप लोग जेन्युइनली ट्राई करें, डू नॉट लुक एट द आंसर, जेन्युइनली आप कैपिटल गेन कंप्यूट करने का ट्राई करिए। यू विल मेक वन मिस्टेक, आई विल गिव यू 5 मिनट्स का टाइम, आप ट्राई कीजिए प्लीज। So what has happened here is your year of transfer in this case is 1920. 1920 में डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो 1920 is year of transfer, but tax will not happen in 1920, taxation will happen in 2021. तो year of tax जो होता है, year of tax that is 2021, ये डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड आयुष, ये डिफरेंस है यहाँ पे 1920 और 2021, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो ये पहले आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए कि ईयर ऑफ ट्रांसफर अलग ईयर में है और ईयर ऑफ टैक्स अलग है। तो उसकी वजह से कैलकुलेशन में एक चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज इट इज, ट्रांसफर एक्सपेंसेस नील, सो नेट कंसिडरेशन 100 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम निकालेंगे। सो हाउ डू वी कंप्यूट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज CII, COA into CII of year of transfer. This is very important, year of transfer, year of tax नहीं, CII of year of transfer लेना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 301 लेते हैं क्योंकि उनको आदत हो गई है 301 लेने की, उनको लगता है करंट ईयर में टैक्स होगा तो 301 आएगा, तो दे टेक 301 डिवाइड बाय 117। ये 301 लेना गलत है, 301 लेना गलत है, इट्स रॉन्ग, इट्स टेक्निकली रॉन्ग। इट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर जिस ईयर में हुआ था उस ईयर का आपको लेना है, ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो ये आता है 20.64। फिर यहाँ पे आता है ईयर ऑफ COI, ICOI इज इक्वल टू COI इंटू CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, यहाँ पे भी ईयर ऑफ ट्रांसफर ही आएगा डिवाइड बाय ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे भी देखो आप दोनों जगह पे 289 लिया हुआ है, 301 नहीं लिया गया था। डिड यू लर्न दिस? समझा आपको मैंने क्या बोला? हाँ सर। तो कैपिटल गेन यहाँ पे आता है। मिस्टेक क्या होता है, इन दोनों जगह पे लोग 301 लेते, ये मिस्टेक है, ये नहीं लेना है, ये रिस्की पॉइंट है। ऐसा कौन से केस में होगा? इस CCDS में चारों केस में होगा, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन, डिस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफाइड। उसमें का डिस्ट्रक्शन अभी हो गया हमारा। एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में से दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में से देखो यहाँ पे। अगर आपने सेल कंसिडरेशन, अगर आपको सेल कंसिडरेशन पैसे में मिला तो पैसे ले लेंगे, और अगर आपको काइंड में मिला, कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी घर के बदले घर देती है, मशीनरी के बदले मशीनरी देती है, तो फेयर मार्केट वैल्यू हम लेते हैं। एक मिनट, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज यूजुअल लेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट देखो उन्होंने क्लियरली लिखा है टिल द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है। टैक्सेबल कब होगा? सब इंश्योरेंस क्लेम जब मिलेगा उस ईयर में टैक्स होगा, और जिस साल में कॉम्पेंसेशन मिलेगा उस साल में जो टैक्स का रेट अवेलेबल होगा उसी वैल्यू पे ये टैक्सेबल होगा।
कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फॉर डैमेज ऑफ मशीनरी शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, वो तो बिजनेस इनकम हो जाता है, टू द एक्सटेंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ द डैमेज मशीनरी, such repairs and renovation expenditure shall be allowed under section 31. However, compensation in excess of repair and renovation expenditure shall be taxable here. वो जो ठीक है, मशीनरी के अगेंस्ट अगर आपको रिपेयर एक्सपेंडिचर मिला होगा, रिपेयर करने का अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा तो रिपेयर कर लो, लेकिन रिपेयर के खर्चे से अगर ज्यादा आपको मिला होगा इनकम, तो फिर वो आपको यहाँ पे कैपिटल गेन में टैक्स करना है सर। फिर यहाँ पे बात करते हैं कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फॉर नॉन कैपिटल एसेट। नॉन कैपिटल एसेट अगर होगा तो या तो पीजीबीपी में टैक्स होगा या तो आईएफओएस में टैक्स होगा। अगर आपका डिस्ट्रक्शन होगा विदाउट इंश्योरेंस, ऑब्वियसली अगर आपका डिस्ट्रक्शन विदाउट इंश्योरेंस होगा तो गवर्नमेंट इतना हार्टलेस नहीं है कि आपका लॉस हो गया और आपको टैक्स करे, तो आपका टैक्स होना है तो कम से कम आपको इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने यहाँ पे एक समरी बना के पूरा लॉ दे दिया। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते फटाफट। लकी हैज अ हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर्ड एज ऑन 18th August 2009 फॉर 6 लाख, तो लॉन्ग टर्म हो गया, 9 की बात कर रहे हैं हम। He used this house for his own residential purpose on 18th August 2012. He incurred capital expenditure for reconstruction of the house. तो ये cost of acquisition हो गया, ये cost of improvement हो गया। On 15th May 2020, he brought office goods inflammable worth 1 lakh rupees at home to be delivered to the party staying near his home. तो इन्हें inflammable मतलब ज्वलनशील, आग लगने वाले जो आइटम में गुड्स है वो घर में लाए उसने 1 लाख रुपए के। अभी तुमको पता ही है घर में क्या होने वाला है। At the night that day, accidental fire took place and the damage whole house property. आग लग गई, फर्नीचर जल गया 5 लाख रुपए का और बिजनेस स्टॉक तो पूरा जल गया। बिजनेस स्टॉक का तो ट्रीटमेंट पीजीबीपी में होगा, वो कैपिटल गेन में नहीं हो सकता क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एज ऑन 18th August 2020। अब देखो आग लगने वाला ईयर भी सेम है और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होने वाला भी ईयर सेम ही है, तो इंडेक्सेशन आप 301 ही लोगे ना। अरे आग भी 2021 में लगी है, इंश्योरेंस क्लेम भी 2021 में, तो ये कोइंसिडेंटली ये दोनों सेम हो गए। समझ रहा है आपको? यस यस। इंश्योरेंस क्लेम फॉर द हाउस 1 लाख इन कैश, 1 लाख रुपया उसको कैश में मिला और घर के बदले घर मिला, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 44 लाख था, तो दोनों होगा ना। 44 + 1 = 45 लाख होना चाहिए टोटल कंसिडरेशन घर का। फर्नीचर का 2 लाख रुपया है और स्टॉक का 80,000 है। टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन। हाउ शैल योर आंसर डिफर इज सच कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय द असेसी एज ऑन 15th April 2021। अगर 15th April 2021 पे अगर मिलेगा तो कैपिटल गेन तो सेम रहेगा, लेकिन आपको टैक्स अभी नहीं भरना है। कैपिटल गेन चेंज नहीं होगा, कैपिटल गेन वही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते 21-22 का इंडेक्सेशन लगेगा, नहीं बाबा 21-22 का नहीं लगता, 2021 का ही इंडेक्सेशन लगेगा। हाँ, खाली आपको टैक्स नेक्स्ट ईयर में भरना पड़ेगा, कंप्यूटेशन तो करंट ईयर के रेट से ही होगा। तो देखो, as damage occurred due to accidental fire, such provision is governed by section 45 subsection 1। हाउस का देखो, हाउस का 45 लाख हो गया, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नील, नेट कंसिडरेशन 45 लाख, 6 लाख को मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 148 ईयर ऑफ एक्विजिशन, CI ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय CI ऑफ एक्विजिशन ईयर। Improvement multiply by 301 divided by 200 CI of transfer year divided by CI of improvement year। तो ये कैपिटल गेन आ गया किसके ऊपर? घर के ऊपर। फॉर फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर मूवेबल होता है ना, पर्सनल मूवेबल असेट होता है, राइट? आज तुम्हारे घर का फर्नीचर पर्सनल मूवेबल असेट है ना? पर्सनल मूवेबल असेट कैपिटल असेट होता है क्या? पर्सनल मूवेबल असेट कैपिटल असेट होता है क्या? इज इट अ कैपिटल असेट? नो, इट्स नॉट अ कैपिटल असेट। तो नो कैपिटल गेन liability arises as furniture is a personal asset, personal movable asset and not a capital asset. Compensation received for loss of furniture shall be treated as a capital asset and hence not liable to tax। और स्टॉक का क्या हो गया? स्टॉक 80,000 का था, स्टॉक के लिए नहीं, स्टॉक के लिए कितना मिला था? 80,000, जबकि स्टॉक की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे तो लॉस हो गया, तो ये तो बिजनेस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड एज अ लॉस ऑफ स्टॉक shall be liable to tax under section 28, तो 80,000 मिलेगा वहां पे और आपका कॉस्ट वहां पे ऑलरेडी
1 लाख रुपए का रहेगा तो 20,000 रुपए का जो लॉस हुआ है आपका shall be allowed under the head PGBP. In case such compensation received in the year 15th April 2021, मतलब in the year 2021-22, then the capital gain will remain same. क्यों सर? क्योंकि इंडेक्सेशन तो चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन वो टैक्सेबल हो जाएगा AY 22-23 में। तो ये लास्ट लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो आपको समझ में आया ये पूरा पॉइंट? डिस्ट्रक्शन वाला पॉइंट समझा ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कॉजेस ऑफ डैमेज अगर नरफे होगा तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा तो ट्रेडेड एज अ ट्रांसफर और टैक्सेबल हो जाएगा। क्लेम ही नहीं मिला तो नॉट टैक्सेबल। और कोई और रीजन से अगर डिस्ट्रक्शन हुआ, नरफे की वजह से नहीं हुआ, NRFE की वजह से छोड़ के और कुछ हुआ, तो नॉट अ ट्रांसफर, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है। और सर नेचुरल कैलामिटीज में क्या क्या आता है? फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। आई होप आप लोगों का ये क्लियर है, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो।